evening all. Am I Am I audible? audible? Okay, so So welcome to all welcome to all in the in World World Breastfeeding Breastfeeding Week Week celebration celebration organized by organized Section by Section Society Society in in collaboration with collaboration with Bhagat Bhagat University, Bodh University, Gaya, Bodh Bihar. Gaya, Bihar. And the And heartiest welcome heartiest to our welcome to our speaker, Dr. speaker, Malika Dr. Jain Malika from Jain from Vanastali Vanastali Vidyapeeth, Vidyapeeth, and and our our coordinator partner, coordinator Dr. partner, Dr. Deepshika Deepshika ma'am, ma'am, in charge in charge PG PG Department of Department Home of Home Science Science from from Bhagat Bhagat University. University, And and our our director, director, Madam Madam Dr. Bansal Bansal ma'am, Bansal ma'am, a a retired dean retired from dean from Vanastali Vanastali Vidyapeeth, Vidyapeeth, and and all the all the audience. audience. So before So before inviting inviting you, our speaker our of the day, speaker of the day, I would like to I would like introduce to you, ma'am. introduce you, ma'am. Dr. Monica Dr. Jain Monica Jain has has been been associated with Vanastali Vidyapeeth since Vidyapeeth last since last 27 years 27 years and is and currently is currently sorry for the the inconvenience. inconvenience. Currently Currently designated designated as as a a professor, food science and nutrition, she she has has an an excellent excellent academic and record. professional record. Her MSc Her in MSc in nutrition nutrition is from is from MS MS University of University of Baroda and Baroda PhD and from PhD Vanastali from Vanastali Vidyapeeth. Vidyapeeth. She has She has also done advanced advanced diploma in in French. French. She is NAT She and is SLAT NAT and SLAT qualified. qualified. Best Best with with superb superb teaching teaching skills. skills. She She is is adored by adored her by her students. students. Her research Her credentials research include credentials over include 70 publications in publications in peer-reviewed peer-reviewed journals, journals, including including Scopus Scopus Index Index once, once, and and has has contributed contributed chapters chapters in in some some of the of the reputed books. reputed books. Many Many awards, awards including including the the prestigious prestigious Young Young Scientist Scientist Award Award from from Nutrition Nutrition Society Society of of India India have been conferred conferred upon her. Her research is Geriatrics has implemented into into a a patent that patent has that been has been granted. granted. Two of her patents are published, and she also has two copyrights. 8 PhDs have been completed under her guidance, and she has supervised over 150 master projects works. She was a member of UGC committee for drafting the life skill two curriculums as well as the facilitators guidelines. She is a trained and active NAC accessor. Being Being a a mentor of food-based startups in Adult in Adult Incubation Center Incubation of Center of Vanastali Vanastali is Vidyapeeth another is feather another in her feather in cap. her cap. She She is is also also a a prolific prolific writer, writer, has authored a book a book on on healthy healthy recipes recipes for the for the elderly elderly and and has has written written for for magazines magazines as as well well as as nutritionist nutritionist books. books. She works She in the works in area the of area public of health, public health, nutrition, nutrition, and and engage assiduously in creating creating awareness awareness about about nutrition-related health nutrition-related health problems. problems. Her Her talks talks on on health health and and nutrition nutrition can can be be listened listened on on different different radio radio channels. channels. She She has has been been mentoring mentoring the the literacy literacy team of team Vanastali of Vanastali Vidyapeeth Vidyapeeth and and uh, is the is pillar the behind pillar the behind team's the team's success in success national in and national and international level, international level, debating and debating quiz and events, quiz events, including including AIU Youth AIU youth Festivals. festivals. Her Her orator, orator rhetorical rhetorical skills skills also also make make her her a a sought sought after after speaker speaker on on scientific and scientific and non-scientific non-scientific platforms. platforms. So, ma'am, So, we are ma'am, feeling we are very feeling proud to very proud to inviting you as a inviting you as a speaker in speaker our in our platform. platform, And and I I would would like like to to invite you to share share your your opinion opinion on on maternal maternal nutrition nutrition and and breastfeeding. breastfeeding. Over to you, Over ma'am. to you, ma'am.
thank you so much, Shilpi, for your kind words and a lovely introduction. Most respected Hindu ma'am, Dr. Deepti Shikha from Madhab University, my colleagues, the members of Saksham Society, a very good evening to all the members present here, students and my teaching colleagues. It is a pleasure to speak on such a pertinent topic when the World Breastfeeding Week is going on. And I would like to congratulate Team Saksham Society for taking up this work and being a torchbearer to enlighten our society about breastfeeding. So today I will be talking upon maternal nutrition and breastfeeding. आमतौर पे ऐसा होता है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में सारा अटेंशन बच्चों पे, नियोनेट्स पे, इन्फेंट्स पे, टॉडलर्स पर जाता है, बट मैं चाहूँगी कि आज हमारा अटेंशन आए टुवर्ड्स द मदर्स who are feeding the babies and who are responsible for creating a healthy India and healthy world. It's like हमारे पुराणों में उपनिषदों में भी स्तन्य इच गाता है, जिसका अर्थ होता है माता द्वारा किया जाने वाला दुग्धपान। और बहुत पहले से ही ऋग्वेद में ये बताया गया है कि जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ में माता को दुग्धपान आरंभ कराना चाहिए। और ऐसी ही कुछ बात आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, जो कि छपी है इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड योगा में, जहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज न्यू दिल्ली से हैं। और ये बात हमें ये ध्यान देने पे मजबूर करती है कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक बहुत लेट हम मनाने लगे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे सिविलाइजेशन में इस बात का ज्ञान बहुत पुरातन समय से, प्राचीन काल से रहा। Coming over to the contemporary times or the present times, next slide. So, World Breastfeeding Week, how did it come into being? It was in around late 80s that a convention, Innocenti Convention, took place, where the leaders of the world who are into breastfeeding, child health, mother's health, they combined, they sat together, they brainstormed and decided to have a World Alliance on Breastfeeding Action. So that came into existence, and from 1992 onwards, WABE, World Alliance on Breastfeeding Action, it started celebrating 1 to 7 August as World Breastfeeding Week, and every year they used to give a new theme for celebration so that all the activities around the world could focus on that particular theme to create awareness among the mothers and also the mothers to be. Next. और इस बार आप जैसे सभी लोगों को अब तक तो ज्ञात हो गया होगा कि WABA का दिया गया थीम है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग रीजन, एथनिसिटी, रिलीजन, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की माताएं होती हैं, और उन सबको साथ लाना, ब्रिज करना उस गैप को जो एक डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, एक अमीर और एक गरीब के बीच में आता है, और सभी माताओं को ज्ञान देना कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है ताकि वो अपने शिशुओं की नर्चरेंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। नेक्स्ट। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ऐसा मैप जिसमें बताया गया है कि इस पूरे संसार के अंदर हिडन हंगर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हिडन हंगर। हिडन हंगर इज बेसिकली a chronic deficiency of one
और मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल्स, उनकी शरीर में कमी हो जाना, उसको हम हिडन हंगर कहते हैं। काफी समय तक इनकी कमी की निशानियां हमारे शरीर में दिखाई तो नहीं देती हैं, पर इनके जो असर शरीर पर होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और बहुत प्रफाउंड होते हैं। तो इस नक्शे में देखकर आपको ये समझ आएगा कि जो डार्क ब्लू कलर का एरिया है वो अलार्मिंगली हाई रीजन है विद रिस्पेक्ट टू हिडन हंगर, यानी कि यहाँ पर लोगों में हिडन हंगर बहुत ज्यादा है, जो साफ तौर पे दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर उनकी फंक्शनल कैपेसिटी, वर्क प्रोडक्टिविटी और फिर उनके देश की प्रगति पर असर डाल रहा है। नेक्स्ट, और ये जो हिडन हंगर है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, इसमें दो सेगमेंट्स बहुत ज्यादा उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। दे आर वल्नरेबल। एक तो है बच्चे और एक है महिलाएं। सो द विमेन इन ऑल द एज ग्रुप्स जो कि रिप्रोडक्टिव एज में 15 to 45 ईयर्स में फॉल करती है, और बच्चे काफी हद तक जो 5 साल की कम उम्र में रहते हैं। और आप सबको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरत है that during pregnancy and after pregnancy the mother remains well nourished so that the child and the infant remains well nourished, और फिर हम इसके लॉन्ग लास्टिंग और प्रोफाउंड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो बिना खर्चा किए हमारे पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बट फिर भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक चिंता का विषय बन जाता है कि ये ज़रूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि सारी माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं वो सभी न्यूट्रिशनली एडवांस स्टेज पे हों, एक ऑप्टिमल कंडीशन में हों, उनमें डेफिशिएंसीज ना हो, ताकि वो एक हेल्दी इन्फेंट को नर्चर कर सकें। नेक्स्ट, और इसीलिए पूरे विश्व में इसकी बात होती है, भारत सरकार भी इसकी बात करती है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन as well as ICMR, they all emphasize the need of nutrition in the first 1000 days of life. और ये जो first 1000 days of life है, ये बच्चे के पैदा होने के बाद से नहीं शुरू हो रहे हैं। When the baby is conceived, वहाँ से ये गिनती शुरू होती है, और वहाँ से लेके जब 1000 दिन का समय होता है, वो डेवलपमेंट के हिसाब से बड़ा ही क्रूशियल समय होता है, क्योंकि उस समय फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है और उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये न्यूरो मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के डेवलपमेंट के लिए सही तरह का न्यूट्रिशन, इंक्लूडिंग ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल। और जब हम इसमें कमी करते हैं तो बच्चे की डेवलपमेंट में असर पड़ता है और एकदम से दिखाई भी नहीं देता है। ऐसे बच्चे जिन्हें शुरू के 1000 दिन यानी प्रेगनेंसी में जब वो अपनी माँ की कोख के अंदर है, वहाँ पे भी अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है माँ को, तो उसका असर हमें दिखेगा कि जो बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होता है तो उसकी IQ इंटेलिजेंस कोशेंट कम हो, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा पुअर होगा। तो ये जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वे काफ़ी बड़े होते हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि मदर हेल्दी रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन और वेल नरिश्ड रहे। So now let us talk about how to improve the nutrition performance, particularly with respect to mothers. Next, please. So after the delivery of the baby, there are certain things that are crucial. एक तो माँ और बच्चे का फिजिकल कॉन्टैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज इसकी वजह से दोनों ही प्रोलैक्टिन और लेट डाउन रिफ्लेक्स ये एक्टिवेट होते हैं और इसकी वजह से बच्चा अच्छे तरीके से फीड कर पाता है। दूसरा चीज़ होता है साइकोलॉजिकल कंफर्ट।
अगर माँ स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं होगा, मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन दोनों ठीक से नहीं होंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि एक जहाँ पे डिलीवरी हुई है उस घर में उस लेडी की देखभाल के लिए एक बड़ी औरत, दादी, नानी रहनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है इन प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल कंफर्ट टू द लेडी एंड दस हेल्प्स बूस्ट ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरी एक और बात होती है यूज ऑफ गैलेक्टोगॉन्स, जिसकी बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन इन सब में मेरे हिसाब से जो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की चीज होती है दैट इज प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन टू द लैक्टेटिंग वुमेन। सो नाउ in the further slides I would be talking about nutrition, how it should be and what it should be for the lactating women. Next please. So for a mother who is lactating, उसकी बॉडी के अंदर बच्चे की ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार मिल्क का प्रोडक्शन होता है और फिर सिक्रीशन होता है। So most of the studies that have been done in India, they show us that if a mother is well nourished, then an average production of milk in the day will be around 850 ml. But if a mother is poorly nourished, in that case, जो milk volume produce होगा उसके शरीर के अंदर वो करीब 600 ml के आसपास होगा। तो इतना अगर डेफिसिट हम देखते हैं कि 800 से 600 मतलब करीब 250 ml कम है, तो आप ये खुद सोचें कि एक बच्चा जिसे 850 ml मिल्क दिन भर में मिल रहा है और सेम एज का बच्चा जिसे 600 मिल्क मदर्स मिल्क एक दिन में मिल रहा है, क्या उनकी ग्रोथ में फर्क नहीं आएगा? और यहाँ बच्चे की ग्रोथ अगर रिटार्ड होती है, फॉल्टर होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? The responsibility, the onus lies on mother's nutrition, and therefore it is important that the mother should be well nourished. Next. और इस हिसाब से probably most of you will be aware that we have a very well structured process of coming up with recommended dietary allowances. So basically the National Institute of Nutrition, it does the work which is a subsidiary body of Indian Council of Medical Research. तो वो समय समय पर अपडेट करके रिसर्च करने के बाद recommended dietary allowances देते हैं, and in case of lactation they have divided the RDAs into two categories. These categories include the first 6 months which are meant for exclusive, यानी कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी और नहीं दिया जाएगा, एंड देन अ पीरियड ऑफ 6 to 12 months जहाँ पर कि इनिशिएट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि माँ का दूध भी दिया जाएगा और उसके अलावा कुछ और खाद्य पदार्थ समय समय पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। जो भी हम आगे की बात करते हैं तो मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर वो हमें 2 टुकड़ों में बटे हुए दिखाई देते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी 6 महीने थोड़े से आगे ज़्यादा होते हैं और उसके बाद 6 से 12 महीने के ऊपर वो थोड़े से कम हो जाते हैं और 12 महीने के बाद में वो वापस से नॉर्मल टाइप पर बेबी आ सकते हैं। नेक्स्ट, Now let us first talk about allergy. तो ऐसा तो नहीं है कि एलर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाएगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन, but it is determined by how much milk is being produced in the body and what is its energy content. And definitely body के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, that is production of milk. वो एक नया प्रोसेस है, उसके लिए एनर्जी चाहिए and there will be an energy content in milk. उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, so थोड़ी सी एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत होती है। And probably you know that during the time of the pregnancy, a woman gains weight between 8 to 11 kgs,
और इस समय में आफ्टर द डिलीवरी जो फर्स्ट 6 मंथ्स है डिलीवरी के बाद में उसका वेट लॉस भी होता है, तो करीब करीब 4 किलो वजन कम होता है इस पीरियड में। और वो तब मैं कह रही हूँ व्हेन यू आर गिविंग द एडिशनल एनर्जी टू द वुमेन। अगर वो एडिशनल एनर्जी नहीं मिलेगी तो शायद उससे ज़्यादा भी वेट लॉस हो जाए जो उस वुमेन के लिए अच्छा नहीं होगा। सो अगर हम डेली एडिशनल एनर्जी की बात करते हैं, so it has been given as around 600 किलो कैलोरी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है हमारे यहाँ जो विमेन की रिक्वायरमेंट्स होती है वो 3 कैटेगरीज में ऑलरेडी डिवाइडेड होती है फॉर अ नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट विमेन, दैट इज सेडेंटरी, मॉडरेट एंड फिजिकल एक्टिविटी एज हाई। तो जितनी भी उसकी फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से एडिशनल 600 किलो कैलोरी, तो वो अमाउंट जैसे अगर वो 1600 किलो कैलोरी उसकी सेडेंटरी वर्क के लिए, उसके बाद ऊपर से 600 किलो कैलोरी और विच विल बी अमाउंटिंग टू 2200 किलो कैलोरीज। एंड लेटर ऑन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स मतलब शुरू के 6 महीने के बाद जो 6 से 12 महीने का पीरियड होता है उसके अंदर 520 किलो कैलोरीज एडिशनली देनी है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट। नेक्स्ट, जो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट किए हैं आईसीएमआर ने वो फैक्टोरियल मेथड को यूज़ करके किए गए हैं। और उसके अंदर जो डेटा काम में लिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो मिल्क होता है उसके अंदर शुरू के 6 महीनों में 9.4 ग्राम डेली प्रोटीन सिक्रीशन होता है और 6 से 12 महीने के दौरान 6.6 ग्राम पर डे ऑफ प्रोटीन सिक्रीशन होता है। और ये जो कन्वर्जन होता है बॉडी प्रोटीन का इनटू द मिल्क प्रोटीन्स, उसके लिए आपको एक तो एलर्जी भी लगती है और वहाँ पे उस प्रोसेस के अंदर भी प्रोटीन लगता है। सो इन दैट केस जो आगे दिया गया है फॉर प्रोटीन इन दीज विमेन वो दिया गया है कि शुरू के 6 महीने में इट हैज़ टू बी 9, थोड़ा डेसिमल पॉइंट्स में है तो मैं राउंड फिगर्स में बता रही हूँ, 19 ग्राम पर डे एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आपको 19 ग्राम देना है, तो रफली ये 75 ग्राम के आसपास आ जाता है दिन में टोटल। और इसी तरह 6 से 12 महीने में 13 ग्राम एक्स्ट्रा देना होता है। और प्रोटीन के साथ जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो प्रोटीन आप लैक्टेटिंग विमेन को दे रहे हैं उसका प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी अ गुड क्वालिटी प्रोटीन। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो वैसे तो न्यूट्रिशन की एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है पर आसान शब्दों में मैं बताऊं तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए हम इस तरह के प्रोटीन फूड्स लें जिसके अंदर सारे तरह के अमाइनो एसिड उपस्थित हो, सारे तरह में इसेंशियल अमाइनो एसिड सारे उपस्थित हो। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में तो ये फायदा होता है पर कुछ सीरियल्स में कुछ पल्सेस में सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं यूजिंग म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, यानी आप सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। तो जो अमाइनो एसिड सीरियल में नहीं है वो हमें पल्स से मिल जाता है, दाल से मिल जाता है, एंड द अमाइनो एसिड दैट इज लैकिंग इन द पल्सेस वो हमें सीरियल से मिल जाता है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन ऑफ फूड। तो फैट को लेके लोग अपने आप से बहुत सारी बातें सोचते हैं। आपको बहुत ऐसे विमेन कहती मिलेंगी फैट का कोई यूज़ नहीं है, ज़बरदस्ती इतना घी खिलाया जाता है आफ्टर डिलीवरी। आपको ऐसी भी विमेन मिलेंगी जो कहेंगी नहीं घी बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, उसी से ताकत रहती है, उसी से मिल्क बनता है। सो पार्शियली दोनों थोड़ी थोड़ी गलत है। फैट डेफिनेटली हैज़ अ रोल, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन है, चाहे लैक्टेटिंग वुमेन है और एक नॉर्मल वुमेन है, तो फैट का डाइट में एक रोल होता है, खाना चाहिए। पहली चीज़ फैट खाने से एक तो इसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी नहीं होती और दूसरी बात ये होती है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स का भी डिजेशन अब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से हो पाता है। इसके अलावा फैट कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करता है बॉडी में, उन सब को भी ठीक से बॉडी कर पाती है। So, what is recommended for lactation is not more than 30 gram visible fat per day. Visible fat.
विजिबल फैट का मतलब होता है कि आप जो घी डाल रहे हैं, जिस तेल में सब्जी बना रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो विजिबल फैट होता है और वो 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आपकी जो ऊपरी लिमिट है वो 30 ग्राम है, तो इतना आप विजिबल फैट खा सकते हैं। अगर हम टोटल फैट की बात करें, दैट इज विजिबल फैट प्लस इनविजिबल फैट, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पत्तों में, दालों में, सब्जियों में फैट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम उन सबको मिला के टोटल फैट की बात करें, तो जितनी भी एनर्जी दिन भर में लेडी खा रही है, उस एनर्जी का 20% फैट से आना चाहिए। Now, अगर फॉर एग्जाम्पल द वुमन इज कंज्यूमिंग 2000 किलो कैलोरीज पर डे, तो 400 किलो कैलोरी कम से कम फैट से आनी चाहिए। 400 किलो कैलोरी का मतलब है डिवाइड बाय 9 करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलती है। सो करीब करीब 44 ग्राम फैट, टोटल फैट एक वुमन खा सकती है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30% ऑफ टोटल कैलोरीज है, यानी 2000 किलो कैलोरी की डाइट में 600 किलो कैलोरी मैक्सिमम हम फैट से दे सकते हैं। दैट विल अमाउंट टू अराउंड 60 ग्राम ऑफ फैट, टोटल फैट। क्योंकि इन विमेन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी है, इस वजह से फैट जो होता है it has double, it is a concentrated source of energy, it has double the energy than carbohydrate। उस हिसाब से increased energy needs को मीट करने में भी फैट बड़ा वैल्यूएबल होता है। नेक्स्ट, मोस्टली we see कि जब भी हम किसी ऐसी कंडीशन की बात करते हैं जो वल्नरेबल कंडीशंस मानी जाती है, वहाँ पर आयरन की बात सबसे पहले होती है। बट थैंकफुली लैक्टेशन की स्टेज में आयरन की रिक्वायरमेंट्स नहीं बढ़ती। द रीज़न बिहाइंड दैट इज, एक तो मिल्क, जो मदर्स मिल्क होता है, उसका आयरन कंटेंट 0.78 मिलीग्राम पर लीटर होता है, जो बहुत हाई नहीं होता। और अगर हम मानते हैं कि एक विमेन में 600-700 ml मिल्क सिक्रीट हो रहा है, तो सिर्फ 0.5-0.6 मिलीग्राम आयरन पर डे उसकी बॉडी से बाहर जा रहा है। दूसरी ये बात होती है कि लेडी जब तक वो शुरू के 6 मंथ्स में ब्रेस्ट फीड करती है, शी सफर्स फ्रॉम एमेनोरिया, तो पीरियड्स में जो ब्लड लॉस हो रहा है वो भी रुका हुआ रहता है। इसकी वजह से आयरन का लॉस कम होता है बॉडी में से, एंड देयरफॉर करीब करीब जो नॉर्मल विमेन की रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, उतनी की रिक्वायरमेंट एक लैक्टेशन वाली महिला के लिए होती है। एंड द बेस्ट सोर्स फॉर आयरन प्रॉबेबली यू नो, दालें खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए। जो लोग मीट खाते हैं वो रेड मीट खा सकते हैं। तो इस तरह से आयरन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द मदर हो जाता है कैल्शियम। सिर्फ अपनी बोन्स को ताकतवर रखने को ही कैल्शियम नहीं चाहिए, मिल्क में, मदर्स मिल्क में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यू कैन सी कि 30 to 40 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम विल बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ मदर्स मिल्क। सो टोटल कैल्शियम जो सिक्रीट होगा डेली वो 300 मिलीग्राम के आसपास तो निश्चित चला जाएगा। और इसके लिए भी एडिशनल इनटेक ऑफ कैल्शियम एसेंशियल हो जाता है। जब आप एडिशनल कैल्शियम देंगे तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो, जो बोन्स को अच्छा रखने वाले न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम के साथ फॉस्फेट भी जाएगा उन फूड सोर्सेज से, तो वो मदर्स की बोन्स को भी अच्छा रखेंगे, बच्चे के डेवलपमेंट में भी मदद करेंगे। एंड देयरफॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज 1200 मिलीग्राम पर डे, वो इंक्रीज हो जाती है। और इस वजह से आपको ढेर सारा दूध और कैल्शियम रिच चीज़ें, पनीर, दही, छाछ लैक्टेटिंग विमेन को देना चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन ए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है विद रिस्पेक्ट टू मैटरनल न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लैक्टेशन। और अगर हम एवरेज फिगर्स में देखते हैं तो कितना रेटिनॉल मिल्क में सिक्रीट होता है, जस्ट 350 माइक्रोग्राम पर डे। दैट मीन्स मदर्स मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल एक प्री फॉर्म्ड विटामिन ए होता है, और जो बीटा कैरोटीन होता है वो प्रोविटामिन ए होता है।
तो RDA में या तो हम रेटिनॉल की वैल्यू को मैच करते हैं या बीटा कैरोटीन की वैल्यू को मैच करते हैं। तो हमें अगर हम रेटिनॉल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक लैक्टेटिंग मदर को 950 माइक्रोग्राम रेटिनॉल लेना चाहिए, या फिर अगर हम बीटा कैरोटीन की वैल्यूज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 7600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन लेना चाहिए। बीटा कैरोटीन हमें प्लांट सोर्सेज से मिलेगा और रेटिनॉल हमें एनिमल सोर्सेज से मिलेगा। ड्रमस्टिक्स लीव्स जो होती है, सहजन का पेड़ होता है, उसकी पत्तियां पीले मिलती है और उनमें ढेर सारा बीटा कैरोटीन होता है। अगर हम उसका पाउडर बना के रखें तो वो न सिर्फ बीटा कैरोटीन का सोर्स बनता है पर कैल्शियम का भी सोर्स बनता है और साथ में वैज्ञानिक प्रोबॉग की तरह भी कार्य करता है, यानी कि मदर्स की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। Next. Then coming over to B vitamins, it is a well-known fact that the B vitamins, most of them, that is thiamine, riboflavin, are guided by the amount of energy you are consuming. Why? Because they are related to energy metabolism. तो थोड़े से एडिशनल अमाउंट्स चाहिए होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन केस ऑफ थायमिन इट इज 0.5 मिलीग्राम। ये सब एडिशनल है, नॉर्मल प्लस दिस अमाउंट। और राइबोफ्लेविन में ये 0.6 है और नाइसिन में ये 6.6 मिलीग्राम। नेक्स्ट, अगर हम आगे देखते हैं बी विटामिन्स को तो पेरिडॉक्सिन के अंदर 2.5 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड फॉर्मिंग न्यूट्रिएंट होता है और मदर्स मिल्क में भी सिक्रीट होता है, दैट इज 100 माइक्रोग्राम। और साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 को 1.5 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा दिया जाता है टू द लैक्टेटिंग मदर। विटामिन C की भी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन बढ़ जाती है। सो अज्यूमिंग कि डेली मिल्क सिक्रेशन करीब 700 ml के आसपास है, तो एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट 3 मिलीग्राम पर 100 ml एक वेल नरिश्ड वुमेन के लिए चाहिए होता है। तो एडिशनली हम जितनी उसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती है उससे कम 20 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C देते हैं। और इसे खाने के लिए, इसे बॉडी में जाने के लिए ध्यान रखना होता है कि उसको कम से कम 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलनी चाहिए और जितना हो सके कुछ वेजिटेबल सैलेड की फॉर्म में आए ताकि विटामिन C का कुकिंग पे डिस्ट्रक्शन ना हो। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि फ्रूट्स में भी अगर पॉसिबल हो तो संतरा जैसे फल भी देने चाहिए जिनमें विटामिन C थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अमरूद बहुत अच्छा रहता है। कमिंग ओवर टू अनदर एस्पेक्ट, ये तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई थी। अब हम ये देखते हैं कि डाइटरी हैबिट्स हमें कैसे डेवलप करनी चाहिए इन अ मदर जिसे हमें वेल नरिश्ड रखना है। तो दैट मीन्स कि आपको डाइटरी डाइवर्सिटी का ध्यान रखना होगा। ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स विच फॉल इन डिफरेंट फूड ग्रुप्स वो उसकी डाइट का रेगुलर हिस्सा बनने चाहिए। सो नॉट ओनली द न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज, न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा एनर्जी भी बढ़ी, प्रोटीन भी बढ़ा, कैल्शियम भी बढ़ा, विटामिन A भी बढ़ा, B विटामिन्स भी बढ़े, विटामिन C भी बढ़ा। उसी तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ यू हैव टू मीट द नीड्स ऑफ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स यू हैव टू एंश्योर कि उनको एनर्जी गिविंग फूड्स जैसे कि सीरियल्स हैं ये भी थोड़ी सी बढ़ाकर मात्रा में मिले। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो बेसिकली प्रोटीन के सोर्स होते हैं, दालें हैं, मिल्क है, ऑयल सीड्स एंड नट्स हैं, ये भी मिले, थोड़ा सा इनका मात्रा भी बढ़े। और प्रोटेक्टिव फूड्स जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड्स भी मदर की डाइट में अच्छी मात्रा में होने चाहिए। साथ में आयोडीनाइज्ड सॉल्ट का यूज होना चाहिए फॉर कुकिंग सो दैट माँ और बच्चे में आयोडीन की डेफिशिएंसी ना। नेक्स्ट,
कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी में हमें लिमिट में यूज़ करनी चाहिए, अगर हम बिल्कुल ना यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। कैफीन स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, मदर के लिए अच्छा नहीं है। दोस्त हु आर हैबिचुएटेड उन्हें कैफीन का इंटेक कम करना चाहिए। और मैं वहाँ पे आप सभी के नोटिस में ये बात भी लाना चाहूँगी, इट इज़ नॉट ओनली कॉफी दैट हैज़ कैफीन, मेनी ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव कैफीन, सम अमाउंट ऑफ कैफीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टी। तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम कम लें। ऐसी फिश जो कि समुद्र की है और जिनमें हैवी मेटल्स कंटामिनेशन हो सकता है, वो फिश नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल का इंटेक बंद कर देना चाहिए। पेपरमिंट, पार्सले, सेब जैसी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मिल्क प्रोडक्शन को घटाने या रोकने का काम कर सकती हैं, ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए। इसके अलावा स्पाइसी फूड्स कम खाने चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए। और अगर मदर गैस फॉर्मिंग फूड्स खाती है तो वो इंडिजेशन की प्रॉब्लम ना सिर्फ मदर को कॉज करते हैं, उस मिल्क के थ्रू वो फैक्टर्स बेबी को पहुंचते हैं और बेबी को भी इंडिजेशन और गैस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। Another thing that is important for a mother is hydration. So पूरी डाइट में सिर्फ फूड ग्रुप्स की बात नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं है, एक और एडिशनल चीज़ जो देनी चाहिए मदर को वो है पानी एंड पेय पदार्थ, फ्लूइड्स। सो इसमें कोई लिमिट या वैल्यू नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि 3 लीटर पानी या फ्लूइड्स तो मदर के पेट में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा भी जानी चाहिए। वाई? बिकॉज मिल्क इज वॉट, तो मॉइस्चर इन द मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट मिल्क के अंदर मॉइस्चर का आता है और वो मॉइस्चर मदर की बॉडी से जा रहा है। तो अगर मदर को डिहाइड्रेशन से बचाना है तो उसे वेल हाइड्रेटेड रखना होगा। सो इट्स नॉट ओनली द ड्रिंकिंग वाटर दैट शुड बी गिवन, इसके अलावा आप जूसेस दे सकते हैं, सूप्स दे सकते हैं एंड पीने की और चीज़ें भी दे सकते हैं। So one has to keep in mind that a woman who is lactating needs to have balanced diet in calm and peaceful atmosphere. और balanced diet का मतलब है कि cereals, pulses, milk products, seasonal vegetables and fruits, curd, ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में हो। अगर एक प्लेट वो लगाती है तो आधी प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरी हो, क्वार्टर प्लेट प्रोटीन से भरी हो, क्वार्टर प्लेट सीरियल से भरी हो, साथ में कर्ड का बोल हो, तब हम कहेंगे कि उसका जो मील है वो बैलेंस्ड है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट शी कंज्यूम्स एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन अ डे। और मील्स की जो फ्रीक्वेंसी रेकमेंडेड है वो अराउंड 5 to 6 मील्स इन अ डे। तो अगर बड़े बड़े मील्स नहीं खा सकते हैं तो उन्हें छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करके हर थोड़ी देर में खाना चाहिए, सो दैट द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी वेल met. Galactogogues. Now इंडियन कंटेक्स्ट में ये एक बात होती है कि ये कहा जाता है कि कुछ खास तरह के लड्डू हैं, कुछ खास तरह की हर्ब्स हैं, वो विमेन को खिलाए जाए which will boost milk production. So galactogogues are substances which are considered to increase milk production. Scientific validation galactogogues का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हमारे ट्रेडिशंस में हम ऐसा मानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकती हैं। Now galactogogues can be of 3 types. मेडिसिनल होते हैं, जब मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा या बहुत कम हो रहा है तो डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में और लेट डाउन में हेल्प करती हैं, तो उन्हें हम मेडिसिनल गैलेक्टोगॉग्स कह देते हैं। हर्बल गैलेक्टोगॉग्स वो होते हैं जैसे कि अजवाइन है, सौंफ है, ये हर्बल गैलेक्टोगॉग्स होते हैं। और अजवाइन, सौंफ, घी, दूध, दलिया इनको यूज़ करके जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं, जो हमें लगता है कि लैक्टेटिंग वुमेन को घरों में खिलाई जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन, उन्हें हम होममेड गैलेक्टोगॉग्स कहते हैं। सो ऑल्दो साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, पर अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग्स पर जाते हैं तो गैलेक्टोगॉग्स इंडिया में हमेशा से खिलाए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा क्योंकि women have become independent, they are living in families where they do not have elderly ladies with them, तो गैलेक्टोगॉग्स का कंजम्पशन थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। इन अ स्टडी डन बाय अस हमने देखा कि जो लोग अकेले रहते हैं वो इतना गैलेक्टोगॉग्स कंज्यूम नहीं करते हैं।
बट जितनी भी महिलाएं गैलेक्टोगॉल्स को कंज्यूम करती हैं उनमें से ज़्यादातर का ये मानना है इट हेल्प्स देम विद मिल्क प्रोडक्शन। और कई बार ये फेथ की, विश्वास की भी बात हो जाती है। अगर नहीं भी हो रहा तो ये पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आती है कि इससे कुछ अच्छा होगा, और उस फेथ से, पॉजिटिविटी से भी कुछ इफेक्ट्स अच्छे आ जाते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि गैलेक्टोगॉल्स को हम साइंटिफिकली तो नहीं कह सकते कि खाने चाहिए, बट डेफिनेटली उनको खाने से क्योंकि कोई नुकसान नहीं है, दे आर नॉट हार्मफुल टू हेल्थ, चाहे वो हर्बल गैलेक्टोगॉल्स हो, चाहे वो होममेड गैलेक्टोगॉल्स हो, इसलिए उन्हें ड्यूरिंग द लैक्टेशन दिया जा सकता है। So I was talking about the study that was done in our department and I was one of the researchers in that. इस स्टडी में हमने देखा कि 1000 में से सिर्फ 400 विमेन ऐसी होती हैं जिन्हें गैलेक्टोगॉल्स के बारे में पता होता है या जिन्होंने खाए होते हैं या अपने घर में किसी को खाए हुए देखा होता है। तो वो प्रचलन थोड़ा सा कम हो रहा है, पर फिर जो 400 विमेन हैं जिन्होंने खाए हैं, जाना है, उनमें से करीब 80% का ये मानना होता है कि गैलेक्टोगॉल्स से फायदा होता है। So this paper was published in an international Scopus Index journal. तो आप मान सकते हैं कि थोड़ा ऑथेंटिसिटी है डेटा के अंदर। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कि कौन से फूड ग्रुप्स एक लैक्टेटिंग विमेन को कितने अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ये यहाँ पर वैल्यूज लिखी है, आप देख सकते हैं, हाउस होल्ड मेजर्स में भी लिखी है और अमाउंट्स भी लिखे हैं। करीब करीब अगर इतना खाया जाएगा तो 2470 किलो कैलोरीज मिलेंगी और 70 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हम डाइट प्लान की बात करें लैक्टेटिंग विमेन के लिए, तो आप सुबह उठ के अगर उसे चाय पीने की आदत है तो चाय ले सकते हैं, अवॉइड की जा सकती है तो अवॉइड हो। बिस्किट और कुछ भीगे हुए नट्स जैसे कि बादाम है, भीगे हुए अखरोट है, वो लेने चाहिए। ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए, एक प्रोटीन रिच स्नैक लेना चाहिए और मिल्क लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग में वापस से पोहा उपमा जैसा एक लाइट स्नैक और छाछ जैसी कोई चीज़ लेनी चाहिए। लंच के अंदर चपाती 3 या 2, चावल थोड़े से, अगर चपाती है तो एक बोल चावल, मूंग की दाल, कोई पतली दाल होनी चाहिए। इसके अलावा सीजनल वेजिटेबल या ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए और सैलेड और दही होना चाहिए। शाम के नाश्ते में आप कोई मैंगो का शेक या बनाना का शेक या एप्पल का शेक ले सकते हैं और उसके साथ में वेजिटेबल सैंडविच जैसी कोई चीज़ या इस तरह का हल्का नाश्ता ले सकते हैं। एंड डिनर शुड अगेन हैव पल्स, चपाती एंड अ सीजनल वेजिटेबल और पॉसिबल हो तो सैलेड भी होना चाहिए। रात को सोते समय दूध और वापस से थोड़े से नट्स लिए जा सकते हैं। Now these are the tables. इसके बाद आने वाली 2 और स्लाइड्स में ये टेबल्स हैं जो हमारे यहाँ किया गया प्राइमरी रिसर्च का डेटा है और इससे हमें ये मालूम हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मदर्स की नॉलेज जो है कुछ एस्पेक्ट्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें सरकार बहुत प्रचार का कार्य कर रही है ना, जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बारे में करीब करीब 90% महिलाओं को पता है। पर बीमारी में दूध देना है कि नहीं देना, हाई एनर्जी फूड्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, इनके बारे में करीब 48 से 50% महिलाओं को ही जानकारी होती है, बाकी को जानकारी नहीं होती है। तो ये जो 3 स्लाइड्स है, कैन यू प्लीज मूव अहेड विद द अदर 2 स्लाइड्स। ये जो 3 स्लाइड्स हैं सिर्फ ये बताती है कि अवेयरनेस की हमारी देश में अभी भी कमी है। हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं लेकिन अभी भी जितनी जानकारी माताओं को होनी चाहिए वो नहीं है। अब देखिए, शिशु के नर्चरेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो वो महिलाएं अपने बच्चे को आगे रखती हैं, खुद को पीछे रखती हैं। तो जब वो बच्चे के केस में भी उनकी जानकारी अभी आधी अधूरी है तो खुद के केस में तो उनकी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं ही होंगे। And therefore it is important that we also give enough importance to maternal nutrition during lactation। और इसके बारे में भी जानकारी फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना जरूरी है। ये एक और चैप्टर है जो मेरे और एक कलीग द्वारा लिखा गया है और एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। तो ये बात करता है IYCL,
जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बात करें या बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो WHO ने इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग की प्रैक्टिसेस के 3 इंडिकेटर्स दिए हैं। वो इंडिकेटर्स क्या हैं, हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, उन सब का डिस्क्रिप्शन आपको इसमें पढ़ने को मिल सकता है। तो जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और IYCF के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए मैं ये रीडिंग फर्दर रेकमेंड करूँ। फ्रैंकलिन डिक्रीव जो है वो एक यूरोप के बहुत ही जाने माने ऑब्स्टेट्रिशियन थे जिन्होंने बहुत काम किया है नेचुरल बर्थ के ऊपर। वो सी सेक्शन डिलीवरीज के खिलाफ थे और ये उनका दिया गया एक कोटेशन है जो मैंने आप सबके लिए यहाँ पर लगाया है that a newborn baby has only 3 demands. They are warmth in the arms of its mother, food from her breast, and security in the knowledge of her presence. And यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग satisfies all 3. Next. जाते जाते आप सबका मैंने बहुत टाइम लिया पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा देश हेल्दी हो तो उसके लिए हमारे बेबीज़ का हेल्दी होना ज़रूरी है और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेबीज़ हेल्दी हो तो उनको ज़रूरत है हेल्दी मदर्स की। सो लेट अस वाउ टू मेक हेल्दी मदर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छे से और बहुत सरल भाषा में आपने समझाया मैम। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, कोई क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग आपसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना, कोई हेजिटेशन हो किसी भी चीज़ को लेके जो प्रेजेंटेशन हुई है उससे रिलेटेड तो आप डायरेक्ट मैम से बात कर सकते हैं। Excuse me, ma'am. जी प्लीज। जी। Good evening, ma'am. Good evening, everyone. मैम आपके जो सेशन थे और आपके प्रेजेंटेशन तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, हाईली डबल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे सेशन थे। लेकिन एक दो क्वेरी है जो हम पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत सारे रिसर्चेस भी आपने दिखाए और बहुत सारे वर्क भी। मेरी आवाज़ जा रही है मैम? यस मैम, आ रही है। हाँ, तो मैम जैसे कि आपने कहा कि सहजन ड्रमस्टिक लीव्स उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं लैक्टो गोगोज की तरह, मीन्स कि आपको जो है लैक्टेटिंग वीमेन के लिए मिल्क प्रोडक्शन में ये बहुत मदद करता है। या फिर कई ऐसे हर्बल चीज़ें, कई ऐसी मेडिसिनल चीज़ें, कई ऐसी होममेड चीज़ें, उसमें जो ड्रमस्टिक लीफ है हम उसको डायरेक्ट जस्ट बॉईल करके या फिर उसको चर्ड करके क्या ऐसे ही हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्या? उसके अंदर ऐसे कोई टॉक्सिन्स नहीं है जो डायरेक्टली यूज़ करने के बाद उसको हेल्थ बेनिफिट्स देने से ज़्यादा कुछ नुकसान ही कर दे क्या मैम? हम आपसे जानना चाहेंगे। Sure, thanks for your question. इस बात को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत स्ट्रेस इस बात को करती हूँ कि there is no scientific validity to the use of galactobots. साइंस अभी बहुत क्लियरली ये प्रूव नहीं कर पाई है कि गैलेक्टोबॉट्स मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ये सारी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है जहाँ जो लिखा हुआ है आयुर्वेदा की बुक्स के अंदर, जो बेसिकली एक्सपीरियंस के बेस पे लिखी जाती है। साइंटिफिक एविडेंस वहाँ पे कम होता है, आजकल होने लगा है, तो वहाँ पर इनके प्रयोग के बारे में लिखा गया है। सो विद रिस्पेक्ट टू मोरिंगा लीव्स, दैट इज ड्रमस्टिक लीव्स, अगर आप उनको थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं तो उससे जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि उनको सड़ा सकती हैं लीव्स को अगर आप स्टोर करते हैं, एंजाइमेटिक चेंजेस जिसकी वजह से लीफ में आ जाते हैं, ब्राउनिंग रिएक्शंस जो हो जाते हैं, वो चीज़ जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद आप इस लीफ को चाहे पाउडर सुखा के पाउडर बना के रखिए, चाहे आप ऐसे ही कंज्यूम करिए। ये लीफ आराम से विदाउट एनी इल इफेक्ट ऑन हेल्थ आपके लिए अच्छी रहेगी।
एक और चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, मॉडरेशन इज द की टू न्यूट्रिशन। किसी भी चीज़ के पीछे पागलपन की हद तक नहीं बढ़ जाना चाहिए। सो इफ इट इज़ अ पाउडर, डू नॉट कंज्यूम मोर देन 5 grams in a day, and if it is a fresh leaf, do not consume more than 15 to 17 grams in a day. प्रगति मैम, पहले आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक सवाल और, एक क्वेरी और मैम। हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है मैम। जितने मैक्रो और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने बता दिए एक सेशन में, वो तो सबसे पहले तो बदहजमी हो गई सबों को इतने सारे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स एक साथ देख करके। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छा सेशन था। लेकिन मैम, जो हाइड्रेशन का आपने थोड़ा सा हम आपसे एकदम बारीक और एकदम एक्यूरेसी चाहेंगे वहाँ पर कि कितना, हाउ मच वाटर एक विमेन है, एक लैक्टेटिंग विमेन है जो कि सेडेंटरी मोड में हो, मॉडरेट में हो, हेवी वर्कर हो, क्या हो, उसका जो डेली दिनचर्या क्या हो, और साथ में जो है इस मैक्रो और मैक्रो को डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज करने के लिए हाउ मच वाटर शी नीड्स पर डे। ओके मैम, थोड़ा सा हमको बताएंगे। See, what happens with respect to water, आपको कहीं पे भी वाटर एक सटीक अमाउंट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। The reason behind that is water requirements of the body, they vary as per the climatic conditions, the weather you are in, and the kind of exposure you are having, कितने आपके वाटर के लॉसेस हो रहे हैं। People individually differ a lot in that. The water requirement for a lady in Rajasthan will be different from a lady in Kashmir, and therefore water will always be told in a range. So अगर आप मिनिमम कहते हैं तो मैं स्किप करूँगी, कम से कम 2.5 लीटर 2.5 लीटर whichever region of the world you are in, वो तो होना ही चाहिए। Beyond that, सबसे अच्छी बात ह्यूमन बॉडी की ये है कि इट टेल्स यू, इट क्रेव्स फॉर समथिंग व्हेन इट नीड्स इट। तो जब जब प्यास लगती है उसे दबाना नहीं है, पानी पीना। थैंक यू मैम। वो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे आपसे कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं सेट किया हुआ। देखिए, रिक्वायरमेंट 25 ml to 35 ml की होती है, वो भी एक रेंज में दी है। अच्छा, ठीक है मैम। अच्छा मैम, हाँ, अब हम जो है मैम ये जो थोड़ा सा कैंपेन, ये जो प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो कैंपेनिंग है, ये 1 से 7 तक में हम लोग को सिर्फ अवेयरनेस के लिए 45 to 50% आपने दिखाया अपना डाटा कि सब लोग अवेयरनेस है। आजकल जिस ढंग से गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है और जिस ढंग से हर प्लेटफॉर्म पे ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, उससे रिलेटेड बच्चों में खास करके जो न्यू कमर्स हैं और जितने भी हमारे न्यू अराइवल्स हैं, जितने न्यू मदर्स हैं, सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए भी और उसके लिए भी। तो ऐसे कंडीशन में ये जो हमारा जो चल रहा है कैंपेन, ये कितना फ्रूटफुल होगा उन 50%, जैसे कि मेरी मदर हैं, ठीक है, मदर अपना केयर नहीं करती है, ये कहीं ना कहीं मैम हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे, आपके क्योंकि बहुत एक्सपर्ट हैं आप इस सेक्शन में, तो क्या माइंडसेट मायने नहीं रखता? कितना भी नॉलेजेस, कितना भी अवेयरनेस हो जाए, लेकिन वो माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा आज की ग्रुप में, और वो हमेशा प्रायोरिटी ही नहीं चेंज कर रही है। प्रायोरिटी हमेशा बेबीज ही रहती हैं और बेबीज ही रहते हैं, वो अपना हेल्थ का भी प्रायोरिटी तो रखती नहीं है। शायद यही वजह है कि जो इस बैड लाइफ स्टाइल और बैड फूड स्टाइल, कितना भी नॉलेज हो, कितना भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन पूरा बॉडी जो है डिजीज रहता है हर आदमी का आफ्टर 40-45। इसके पीछे कहीं ना कहीं नॉलेजेस तो अवेयरनेस होने के बाद भी लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। क्या मैम, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती है मेरे थॉट्स? Yes, partially I agree with you, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि if we do sensitization campaigns and if they are strategically planned, तो उनका impact इंडिया ने पहले भी देखा है और हम इस कंडीशन में भी देख सकते हैं। One example that I would like to give here is that कि मैं जब भी अपनी applied and community nutrition की क्लास में जाती हूँ, which is master's class, and I ask them while teaching some topics कि क्या आप जानते हो what does 2 बूंद जिंदगी की means?
तो उन्हें न सिर्फ अमिताभ बच्चन याद आते हैं, उन्हें पोलियो भी याद आता है। एंड वी ऑल आर टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट एक बहुत स्ट्रैटेजिक REC प्रोग्राम करके हमने पोलियो को इरेडिकेट किया इंडिया में। सो अगर उतना फोकस होगा, उतनी स्ट्रैटेजी होगी गवर्नमेंट का, उतना कमिटमेंट होगा टू द कॉज, और पीपल लाइक अस वो भी इसके अंदर उतने ही कमिटमेंट से जुड़े रहेंगे, द चेंज विल नॉट बी एज डिफिकल्ट एज वी फील एज ऑफ नाउ। थैंक यू मैम, एक्चुअली टाइम में बॉन्डेड है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रगति मैम, काफ़ी सारे आपने क्वेश्चंस किए एंड थैंक यू सो मच मैम, मोनिका मैम, और बाकी सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, जो कि आप चैनल पे जाके बाद में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। और आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा रहा है, आपने बहुत अच्छे से मैम डिस्क्राइब किए हैं सब चीज़ें। एंड इन फ्यूचर हम फिर से आपको इनवाइट करेंगे मैम ऐसी जानकारी के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम।